In loose soil, the particles are not very close to each other, and you can see there is a possibility of water can flow through this way. And for the dense soil, water will face difficulty to flow. So if you compare these two figures, you will see that in loose soils, permeability is very high. That is that water can flow through the particles, but for dense soil, permeability is very low. The soil is a particular material. Soil is composed of particles. The voids in a soil mass are interconnected under saturated condition. Or so it depends. I'm sure that you have learned that between the particles there are some voids, and sometimes the voids are filled with the air, or sometimes water are filled with the sometimes water voids are filled with the water. So if voids are filled with the water, then the condition will be saturated. So under saturated condition are filled with water, allow water to pass through the. So seepage is basically a phenomenon in which water can pass through the material. So no soil is absolutely impermeable. Impermeable means that no soil is 100% stop water. So generally water can easily pass through the soil, but some of them are relatively impervious while others are pervious. Pervious means those soils where water can easily pass. Impervious means those soils where water face difficulty to pass. A soil is said to be pervious when it offers the minimum possible resistance to flow of water. For example, clean, coarse-grained soil. So such soils are called pervious soil because water through them can easily pass. The soil possesses very good drainage conditions. So generally, if someone asks you that what is the permeability of soil, the unit you will say is meter per second or centimeter per second. So generally, if a soil has good permeability, it usually ranges between 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 5. And for impervious soil, it ranges between, you can say, 10 to the power minus 8 or even lower. So if you compare these two figures, 10 to the power minus 2 is generally for the sandy soil, and 10 to the power minus 8 is generally for the clay soil. So soil are permeable due to the existing of interconnected voids through which water can flow from point to point. So because of the voids in the soil, water can flow. The knowledge of permeability is essential for most technical engineering problems dealing with the flowing water in a coming in contact with water. So dealing with the water is very important for foundation point of view and design of structures. Analysis of stability, foundation, and excavation coming in contact with flowing water. Analysis issues of dams. So permeability, to know about the soil permeability is very important in design of the foundation, design of the structure, and also in design of the dams or embankments. Then the question is why to measure the permeability? Again, the importance is towards the design of drainage system. Whenever you design the drainage system, you must know the permeability. Then estimation of well yield. So आप सबने जो ट्यूबवेल्स वगैरह देखे होंगे उनकी कैपेसिटी निकालने के लिए आपको permeability soil को जानना बहुत जरूरी है. Then design of relief wells हैं, impervious blanket है. Relief wells अगर आपने कभी किसी ने कंस्ट्रक्शन देखी हो अंडरपासेस की, जब कंस्ट्रक्ट करते हैं खासतौर पे जो नहर के किनारे पे लाहौर में बनाएंगे अंडरपासेस, उनके साइडों में पहले रिलीफ वेल्स दिए जाते हैं ताकि जो ग्राउंड सैचुरेटेड है उसके अंदर से पानी जो है सीपोर्ट होकर या साइड से उसको डाइवर्ट कर दिया जाए. Then comes rate of consolidation and related settlement है. Consolidation का टॉपिक जो है अभी हम लेटर क्लासेस में पढ़ेंगे. Then investigated problems involving pumping of water from underground constructions and seepage burst into the soil mass which may create corrosion piping effect. Sometimes जो water flow करता है soil से उसकी velocity इतनी ज़्यादा होती है कि अपने साथ वो particles को बहा के ले जाता है. ये जो phenomena है इसको piping कहा जाता है. Some flow conditions जनरली जो फ्लो की होती हैं वो 2 और 3 टाइप्स होती हैं. एक को लैमिनर फ्लो कहा जाता है, एक टर्बुलेंट फ्लो कहा जाता है. लैमिनर अगर आप लेम वर्ड से बात करें तो लैमिनर का मतलब है स्मूथ फ्लो. सो इन लैमिनर फ्लो ईच फ्लूइड पार्टिकल्स ट्रैवलिंग अलोंग अ डेफिनेट पाथ. टर्बुलेंट फ्लो है जिसका फ्लो स्मूथ नहीं होता. फ्लूइड पार्टिकल्स आर इरेगुलर एंड ट्विस्टिंग, क्रॉसिंग एंड रिक्रॉसिंग एट रैंडम. सो इन जनरली मोस्ट ऑफ दी हम सॉइल इंजीनियरिंग के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसमें हम फ्लो को लैमिनर लेते हैं. अनदर टेक्निकल टर्म वो जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है और हाइड्रोलिक ग्रेड है. So hydraulic grading is the line joining the pressure
in the beginning, top of the water level, at the inlet, to the pressure at the end of the pipe. इसको मैं आपको फिगर से एक्सप्लेन करता हूँ. अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो ये बेसिकली एम्बैंकमेंट है, ये इसकी अपस्ट्रीम साइड है, ये डाउनस्ट्रीम साइड है. ये बेसिकली इसकी वाटर की लाइन है. इसका मतलब ये है कि ऊपर वाली साइड जो है वो ड्राई है और नीचे वाली जो सैचुरेटेड है. अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन ड्राइंग करता हूँ तो ये बेसिकली हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है. इसकी डेफिनेशन मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की है. अच्छा, एनर्जी की बात करते हैं फ्लूइड पार्टिकल्स के अंदर. तो एनर्जी फ्लूइड पार्टिकल्स जो है वो तीन चीज़ों में मुश्तमिल होती है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी है जो वेलोसिटी की वजह से होती है, स्ट्रेन एनर्जी है प्रेशर की वजह से होती है, पोटेंशियल एनर्जी है एलिवेशन की वजह से होती है. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, mgh, उसमें h आता है. काइनेटिक एनर्जी के अंदर हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला से वेलोसिटी आती है. और जो स्ट्रेन एनर्जी ये बेसिकली प्रेशर. टोटल हेड की बात की जाएगी तो उसमें वेलोसिटी हेड आ जाएगा, प्रेशर हेड आ जाएगा और एलिवेशन हेड आ जाएगा. तो इन तीनों का जो मजमूआ है वो टोटल हेड कहलाएगा. समटाइम प्रॉब्लम्स पे डिपेंड करता है कि अगर वेलोसिटी हेड बहुत कम है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं. तो इसका मतलब ये होगा टोटल हेड जो बाकी बचेगा प्रेशर हेड होगा प्लस एलिवेशन हेड. Now hydraulic gradient के डिटेल्स थोड़ी सी एक्सप्लेन करते हैं. Now consider an example. So there's a point and then there's a B point. So if water is flowing from A to B, it means that A is at high level and B is at low level. So there is a difference in the head in these 2 points. तो अगर आपने वेलोसिटी हेड को इग्नोर किया तो हमारे पास एक प्रेशर हेड बचेगा और दूसरा एलिवेशन हेड बचेगा. तो प्रेशर हेड जो है अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो वो होता है पोर वाटर प्रेशर डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू, यानी डेंसिटी ऑफ वाटर. और एलिवेशन हेड जैसे वर्ड से क्लियर है, एलिवेशन को जाहिर कर रहा है किसी एक रेफरेंस पॉइंट से. तो रेफरेंस पॉइंट को यहाँ पे डेटम को वर्ड दिया. तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को डिफाइन ये किया जा सकता है कि ए और बी के दरमियान में जितना टोटल हेड लॉस हुआ है डिवाइडेड बाय यूनिट लेंथ. यूनिट लेंथ से मुराद डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. ए पॉइंट पे हेड माइनस बी पॉइंट पे हेड, इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय द length between A and B is called the hydraulic gradient. When water flows through a saturated soil mass, there is sustained resistance for the flow because of the presence of solid matter. However, the laws of fluid mechanics, which are applicable for the flow of fluids through pipes, are also applicable to flow of water through soils. As per Bernoulli equation, the total head at any point in water under steady flow condition may be expressed as follows. ये same फॉर्मूला है जो पहले आपको शो किया गया. टोटल हेड बराबर होता है प्रेशर हेड के, वेलोसिटी हेड के और एलिवेशन हेड के. हाइड्रोलिक ग्रेडियंट में जो है, अब हमने जैसे पहले पढ़ चुके हैं, टोटल हेड होगा एलिवेशन हेड प्लस प्रेशर हेड वेलोसिटी हेड के. इन तीनों का मजमूआ जो है टोटल हेड किसी भी पॉइंट पे होगा. तो अगर हमने ए और बी पॉइंट पे टोटल हेड कैलकुलेट करना हो तो पहले एलिवेशन हेड है, विच रेफर्स टू सम डेटम है. देन हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास कौन सा हेड है, ये हमारे पास हेड है प्रेशर हेड है, जिसपे मैंने आपको बताया था कि ये पोर वाटर प्रेशर डिवाइडेड बाय गैमा ऑफ वाटर है. और लास्टली हमारे पास वेलोसिटी हेड है. हम वेलोसिटी हेड की डेरिवेशन की तरफ नहीं जाएंगे. वेलोसिटी हेड जो इक्वल होता है तो वेलोसिटी के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स जी होता है. प्रेशर हेड जो होता है वो पोर वाटर प्रेशर डिवाइडेड बाय गैमा ऑफ वाटर होता है. और जेड ए जो बेसिकली यहाँ पे शो किया गया ये एलिवेशन हेड है. इसी तरह दोनों पॉइंट्स के ऊपर एच ए और एच बी के ऊपर हम हेड कैलकुलेट कर सकते हैं. इसको फर्दर एलैबोरेट करते हैं इस फिगर से, आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आ जाएगा. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सॉइल सैंपल है. हमने ए और बी पॉइंट के ऊपर जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालना है, ये हेड लॉस निकालना है. इसका मतलब ये है कि हम हेड कैलकुलेट करेंगे पहले ए पॉइंट को और हेड कैलकुलेट करेंगे पॉइंट बी पे. इन दोनों का डिफरेंस होगा और उसके दरमियान में जो लेंथ पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आ जाएगा. तो हाइड्रोलिक हेड या हेड जो ए पे है वो बराबर होगा हमारे पास एलिवेशन हेड के,
जो ZA है, जैसे मैंने आपको पीछे शो किया, ZA इसके प्लस प्रेशर हेड है जो पोर वेक्टर प्रेशर डिवाइडेड बाय गामा W, और लास्टली हमारे पास वेलोसिटी हेड होगा। तो इस पॉइंट पे अगर अपन निकालना होगा तो हमारे पास एलिवेशन हेड विद रेफरेंस टू सम डेटम, जैसे ये डेटम की लाइन है, तो यहाँ से जो हाइट बनेगी उसको हमने ZA से शो किया गया, तो ये हमारे पास एलिवेशन हेड है। पोर वाटर प्रेशर हेड या प्रेशर हेड जो है वो हेड है जो ड्यू टू वाटर है। तो हमारे पास अगर ये वाटर का चैम्बर यहाँ पे है तो यहाँ से लेके स्टार्ट टॉप से लेके ए पॉइंट तक की जो इसकी ये डेप्थ बनेगी, इसको हम प्रेशर डिवाइडेड बाय गामा W से कैलकुलेट करते हैं। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो चीज़ें बेहतर और लेवल और क्लियर हो जाएंगी। सेम वे ये बी पॉइंट के ऊपर जो है हमारे पास एक प्रेशर हेड होगा, एक एलिवेशन हेड होगा और एक हमारे पास वेलोसिटी हेड होगा। अगेन ये सेम उसी के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, उन दोनों का डिफरेंस जो है HA माइनस HB इज इक्वल टू H लिखा हुआ है। तो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा, H ओवर L के, जो डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट A एंड B के। तो यहाँ पे डिफाइन किया गया PA B का मतलब है प्रेशर हेड है, VA VB का मतलब वेलोसिटी है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, गामा W जो यूनिट वेट ऑफ वाटर, और H जो है हेड लॉस है, हेड लॉस बिटवीन पॉइंट A एंड B। फाइनली जो हमारे पास हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की जो इक्वेशन डेवलप होगी वो है I इक्वल टू हेड लॉस बिटवीन 2 पॉइंट्स डिवाइडेड बाय द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। I जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहलाता है। अच्छा, हमने दो तरह के भी पढ़े थे, जो फ्लो थे, लैमिनर फ्लो था, टर्बुलेंट फ्लो था, तो कभी कभार बीच में एक ट्रांजिशन जोन भी कहा जाता है। तो लैमिनर फ्लो ये वो फ्लो जो स्मूथ है, टर्बुलेंट के अंदर इरेगुलर पार्टिकल्स हैं, और ट्रांजिशन जो समवेयर इन बिटवीन लैमिनर और टर्बुलेंट के। अगर आप हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेते हैं तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपको रफली आइडिया दे देगा कि आपका जो फ्लो आने वाला है पाइप से या जहाँ से भी गुजरने वाला है वो लैमिनर है या ट्रांजिशन में है या टर्बुलेंट के अंदर। तो ये चार्ट बेसिकली आपको आइडिया देगा कि किस तरह वेरिएशन आती है वेलोसिटी की हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है, अगर आप इन दोनों की रेशियो लेते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आपके पास लैमिनर फ्लो आता है, फिर ट्रांजिशन जोन आता है और फिर टर्बुलेंट जोन आता है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस में है। इसका मतलब ये है कि अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू कम आती है किसी प्रॉब्लम के केस में तो हमारा फ्लो लैमिनर हो। I इज इक्वल टू H ओवर L है। H ओवर L की वैल्यू उस सूरत में ज़्यादा, उस सूरत में कम आएगी अगर आपका हेड लॉस कम होगा और लेंथ जो होगी दो पॉइंट्स के दरमियान में वो ज़्यादा होगी। तो जितना हेड लॉस आपका कम होगा उतना फ्लो जो है लैमिनर होने के चांसेस हैं। तो एट ए हायर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट द फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट। तो जितना हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा हमारा फ्लो भी इरेगुलर होता जाएगा। ठीक है, देन डॉर्सी लॉ, ये सब टॉपिक्स जो हैं ये आपके कंटेंट का हिस्सा है, तो उनको स्टेप बाय स्टेप करके हम इसको कवर कर रहे हैं। तो डॉर्सी लॉ सेज कि फ्लो जो है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो है प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होती है, यानी कि जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ज़्यादा होगा। तो ये जाहिर करती है कि अगर वेलोसिटी को बढ़ाते जाएंगे तो हमारा जो फ्लो है वो लैमिनर से टुवर्ड्स टर्बुलेंट की तरफ चला जाएगा। अच्छा, परमिलिटी की यूनिट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सेंटीमीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है, तो ये बेसिकली वही दोबारा चीज़ें एक्सप्लेन हो रही है। अगर आपसे कुछ जनरली पूछा जाए कि भाई ये बताएं कि क्ले की कितनी परमिलिटी होती है, सैंड की कितनी होती है, ग्रेवल की कितनी होती है, तो क्ले की रफली 10⁻⁻⁶ सेंटीमीटर नहीं, बल्कि ये यूनिट यहाँ पे जो शो हो रहे हैं ये तकरीबन मीटर में है। तो ये 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड है, 10⁻³ मीटर पर सेकंड है, 10⁻0 है। तो क्ले की परमिलिटी जो है 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड है, या इससे भी लोअर हो सकती है, 10⁻m पे जा सकती है। तो ग्रेवल की तरफ जाएंगे या सैंड की तरफ जाएंगे तो जो हमारे पास परमिएबल मटेरियल है उनकी परमिलिटी ज़्यादा होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फाइनर साइड है, ये कोर साइड है। अच्छा, डिफरेंस रिसर्चर्स ने फार्मूले सजेस्ट किए हैं, ये आगे डिटेल में भी दोबारा आएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ कोट की गई है हैजन की। हैजन एक फार्मूला सजेस्ट किया है कि अगर आप परमिलिटी निकालना चाहते हैं किसी भी सॉइल की, और अगर आपने सी में एनालिसिस किया हुआ
मैं आई एम श्योर है कि आपने D10 जो है पिछले कुछ लेक्चर से पढ़ा होगा, जिसमें हमने CV और CC कैलकुलेट किए होंगे। तो आपने सिंपल C1 एस D10 की वैल्यू निकालनी है। ये कोफिशिएंट है, ये भी लिटरेचर में गिवन है कि कोफिशिएंट की वैल्यू 1 to 1.5 में वेरी करती है। तो यहाँ से आप रफली आइडिया लगा सकते हैं कि किसी भी सवाल की परमिलिटी क्या होगी। नाउ अगेन हम डिटेल एलैबोरेट करते हैं इस प्रॉब्लम को कि डिस्चार्ज और सीपेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। तो अभी मैं आपको फिगर शो करूंगा जिसमें उसमें शो करने से पहले मैं आपको सिंपल ये नीचे पहले दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सिंस डार्सी लॉ assumes no change in the volume of voids and soil in saturated condition, the quantity of flow through section A, B, B and C should remain same. अगर आपकी सॉइल की कंडीशन सैचुरेटेड है तो जितना क्वांटिटी में वाटर फ्लो एक पॉइंट पे कर रहा है उतनी ही क्वांटिटी में वाटर फ्लो दूसरे पॉइंट पे करेगा अगर सॉइल की कंडीशन सैचुरेटेड है। ये एज पर डॉर्सी लॉ जो है ना, ये असम्पशन है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम प्रॉब्लम को देखते हैं। तो ये हमारे पास A और C के दरमियान में अब ये समझने की एक सैंपल पड़ा हुआ, ठीक है। और R1 जो है ये एक चैम्बर है, वाटर चैम्बर है जो लेफ्ट साइड पे है। R2 एक और चैम्बर है जो राइट साइड पे है। तो A और C पॉइंट पे अगर फर्स्ट करें आप कुछ चीज़ मेजर करना चाहते हैं तो हमने पहले A और C पॉइंट के ऊपर वाटर लेवल देखना है कि कितना है, या प्रेशर देखना है इस पॉइंट पे कितना आ रहा है। तो स्टार्टिंग में अगर हमने ए पॉइंट पे देखा तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो रिजर्वायर था, जो चैम्बर था, उसका प्रेशर लेट्स से इस पॉइंट पे था जिसको मैंने H1 से जाहिर किया। लेकिन जब इसने मूव करना शुरू किया, क्वांटिटीज दो सेम है लेकिन प्रेशर रिड्यूस होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हेड यहाँ पे रिड्यूस हो गया। अगर हम इनके दोनों के दरमियान में स्ट्रेट लाइन ड्रॉइंग करते हैं तो ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को जाहिर कर रहा है। अच्छा, कुछ रिलेशन है कि वेलोसिटी या सिंपल वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी में क्या रिलेशन हो सकता है। अच्छा, if soil be represented as divided into solid matter and void spaces and the area available for the pressure of water is only AV, if Vs is the velocity of the flow in the voids, V the average velocity across the section, then for flow that is Q is root AV. अच्छा, अब इमेजिन ये करें कि दो सेक्शन है हमारे पास, एक A पॉइंट पे और एक B पॉइंट पे है। A पे डिस्चार्ज बराबर होगा AV के और B पे भी डिस्चार्ज बराबर होगा AV के। डिस्चार्ज दोनों सेम होंगे सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर, कैस्केड लॉ की एक्सेप्शन। अब डिस्चार्ज अगर ए पॉइंट से गुजर है और डिस्चार्ज एक वाइड से गुजर है तो दोनों केस में डिस्चार्ज बराबर होगा। तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें ये बताया गया है कि वाइड से अगर एरिया लेते हैं एक साइड के ऊपर, दूसरी साइड पे एक जनरलाइज ओवरऑल एरिया लेते हैं तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो वाइड के एरिया और वाइड के थ्रू जो वेलोसिटी पास कर रही है, सी पिच वेलोसिटी या वाटर जैसा मूव कर रहा है उसको सी पिच वेलोसिटी का नाम दिया गया, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर आप इसको रीअरेंज करते हैं तो वाइड के थ्रू जो वेलोसिटी है Vs जो किया गया वेलोसिटी फ्लो या सीपी वेलोसिटी है उसको आप रीअरेंज करके इस तरह लेके आ सकते हैं। और अगर आप इन दोनों की रेशियो देखें A और AV की, आपने जो पहले लेक्चर पढ़े हैं उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि पोरोसिटी की का मतलब क्या होता है। तो आप इसको 1/n कह सकते हैं पोरोसिटी को। और फाइनली ये जो है ये वाइड रेशियो का रिलेशन है, ये भी आपने ड्राइव किए होंगे। इन दोनों को रिप्लेस करके अगर आप Vs की इक्वेशन में लेके जाते हैं तो Vs जो है हमारा V1 is equal to 1/1 plus E over E into V। अच्छा, इसको फर्दर सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा। अगर अभी इस तरह की एक एग्जांपल लें, इसमें फर्दर डिटेल में एलैबोरेट किया गया जो पहले ड्राइव किए हमने फॉर्मूला। लेट्स से हमारे पास डार्सी इक्वेशन के अंदर जो V सिंबल है वो एक एपरेंट वेलोसिटी है या अप्रोच वेलोसिटी को कहा जाता है या डिस्चार्ज वेलोसिटी। ये जनरलाइज्ड टर्म है, यानी Q is equal to AV, ये उस V की बात हो रही है। अच्छा, ये वेलोसिटी जो है ये रिलेटिव टू सब सेक्शन होती है, जैसे ए मैंने आपको शुरू में बताया कि Q is equal to AV। अच्छा, जब एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू पोर्ट्स है, जो वेलोसिटी पोर्ट से पास करती है वो हमारी सुपरफिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। ये रिलेशन से प्रूव हो सकता है, जिससे मैंने अभी पिछले स्लाइड में प्रूव किया और इस स्लाइड में दोबारा प्रूव होगा। अगर हम सॉइल की पोरोसिटी की बात करते हैं तो वो AV और A होगा। फ्लो रेट की बात करेंगे तो Q is equal to AV होगा। अगर हम एरिया निकालना चाहें A का या AV का, ये वाइड्स का या जनरलाइज एरिया,
तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉइल परपेंडिकुलर फोर डायरेक्शन होगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वाइड्स बिटवीन सॉलिड एंड ऑफ सॉइल होगा। तो डॉट्सी लॉ के मुताबिक ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। उसके बाद हमने सिंपल इसको रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद पोरोसिटी से इसको रिप्लेस किया, फाइनली इसको वाइड रेशियो में रिप्लेस किया। अच्छा, आपको साथ ये भी पता होगा कि जब वाइड रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो वाइड रेशियो का जो प्रोडक्ट है 1 + E डिवाइडेड बाई E हमेशा 1 से ग्रेटर आता है। अगर ये प्रोडक्ट 1 से ग्रेटर है तो VS जो है या सीपेज वेलोसिटी है वो वेलोसिटी से ग्रेटर है। तो इस तरीके से प्रूफ किया जा सकता है कि आपकी सीपेज वेलोसिटी जो है या वेलोसिटी थ्रू द पोर्स है वो ऑलवेज ग्रेटर होती है एपरेंट वेलोसिटी से या डिस्चार्ज वेलोसिटी से। तो ये सिंपल्स का जिक्र है, V डिस्चार्ज वेलोसिटी है और VS जो है सीपेज वेलोसिटी है। फैक्टर्स की बात करें जो अफेक्टिंग है परमेबिलिटी के, उसमें साइज ऑफ द सॉइल ग्रेन है, प्रॉपर्टीज ऑफ द पोर फ्लूइड है, वाइड ऑफ द सॉइल है, शेप एंड अरेंजमेंट। तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिससे परमेबिलिटी को अफेक्ट किया जा सकता है। मतलब पार्टिकल्स कुछ स्मूथ सरफेस के हो सकते हैं, कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो इरेगुलर शेप में हो सकते हैं, डेंसर कंडीशन हो सकती है, लूज कंडीशन हो सकती है। तो ये सब चीज़ें जो है ये अफेक्ट कर सकती हैं परमेबिलिटी। मैंने आपको शुरू में हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन शो की थी, ये वही इक्वेशंस को दोबारा यहाँ पे जिक्र किया है कि आप परमेबिलिटी कैसे मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है ना परमेबिलिटी को मेजर करने के दो तरीके हैं, लेबोरेटरी में मेजर करना या फील्ड में मेजर करना। मैं अभी ये कुछ स्लाइड्स हैं ये आपके रेलेवेंट नहीं है कुछ पेजेस, तो ये मैं कुछ स्किप करूँगा पेजेस। और ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि मिसाल के तौर पे कि आपको याद होगा कि मैंने कुछ ज्योलॉजी में जो चीज़ें पढ़ाई थी उसमें सैंड की कुछ कंडीशंस का जिक्र किया था, एब्जॉर्ब वाटर लेयर का जिक्र किया था या ओवन ड्राई लेयर का जिक्र किया था। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आपने पढ़ी हुई हैं तो आप फैक्टर्स के अंदर लिख सकते हैं। जैसा सैंड जो है अगर आपकी सैचुरेटेड कंडीशन में पड़ी होगी तो उसकी परमेबिलिटी किस तरह हो सकती है, सैंड ड्राई कंडीशन में पड़ी होगी उसकी परमेबिलिटी कैसे आ सकती है, अगर इम्प्योरिटीज होंगे वाटर में तो उसकी परमेबिलिटी में क्या फर्क पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें स्लाइड्स में लिखी हुई हैं जिसको आप जो है वैसे याद करके फिर फास्ट में लिख सकते हैं अगर पूछा जाता है आपसे। अच्छा, मेथड्स की